Now today we'll start tangential acceleration. For example, this is a point P and this particle P rotates in circular path. The center of circle, this is a radius vector, and particle P moves from P to P dash position. This is R dash vector OP dash, and this is angular velocity omega. ठीक है स्टूडेंट, and this angular velocity is along the direction of axis of rotation. ठीक है स्टूडेंट, सो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? along the direction of axis of rotation. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, रोटेट कर रही है, so this is the direction of angular velocity along the axis of rotation. This is the linear velocity v at point P along the tangent, and this is the velocity v dash at point P dash along the tangent of the path. Now this is the small angle d theta when a particle moves from P to P dash position. Now this is if this is delta theta, means angle between this radius vector r and r dash. This is also same angle delta theta between the velocity vector v and v dash. जिस हिसाब से आपके ये रेडियस वेक्टर चेंज हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी ये लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है. दिस इज अ डेल्टा आर चेंज इन रेडियस वेक्टर व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन P टू P डैश. ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज ए डेल्टा एस. दिस इज ए डेल्टा एस. दिस वन P to P dash, this arc is the linear distance. This arc is P to P dash. This is a linear distance delta s, and this R to R dash, this is a radius vector. This is a radius vector. ठीक है स्टूडेंट, this is a delta R when particle moves from P to P dash position. This is a linear distance delta s, P to P dash, this one, and this is a delta r, change in radius vector, change in position of radius vector. Now caret tangential acceleration. The direction of linear velocity is tangential to the circle. Student, ये जो आपकी linear velocity है, ये किसके along है? Along the tangent of the circle. Whereas the direction of angular velocity omega is along the axis of rotation. मैंने अभी कहा ये जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. मींस फॉर एग्जांपल ये बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच दिस बॉडी रोटेट्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द direction of angular velocity. So direction of angular velocity is along the axis of rotation. ध्यान से देखना स्टूडेंट, direction of angular velocity is along the axis of rotation and direction of linear velocity is along the tangent of the circle. ठीक है स्टूडेंट, this is the tangent of the circle. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है. So direction of angular velocity is along the axis of rotation and direction of linear velocity is tangential to the circle. The radius is also represented as a vector r directed radially from the center of circle. ये क्या है? directed radially outward. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द रेडियस वेक्टर r. ठीक है स्टूडेंट, सो मेन आपने जो इस वाले आर्टिकल में क्या देखना है? द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज along the tangent of the circle and direction of angular velocity is along the axis of rotation. ठीक है स्टूडेंट, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी आपकी रोटेट कर रही है. नाउ डेरिवेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है स्टूडेंट, सो अब आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है स्टूडेंट, वो कहाँ पे चेंज हो रही है? along द टेंजेंट. दिस इज अ सर्कुलर पाथ, बॉडी आपकी, दिस इज अ लीनियर वेलोसिटी along द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. दिस इज अ लीनियर वेलोसिटी along द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. अब स्टूडेंट जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, वो कहाँ पे चेंज हो रही है? along द टेंजेंट. इट मीन्स along द टेंजेंट अब कोई एक्सेलरेशन पैदा होगी. along द टेंजेंट कोई एक्सेलरेशन पैदा होगी. उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है स्टूडेंट, सो चेंज इन वेलोसिटी along द टेंजेंट ऑफ द सर्कल के कारण स्टूडेंट ये आपका AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है. ठीक है स्टूडेंट, सो ये हम प्रूव कर चुके हैं. V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R. ठीक है स्टूडेंट, so in magnitude form V is equal to R omega.
So differentiate both side dv by dt and derivative of r omega. So differentiate both sides. v is equal to r omega. डेरिवेटिव कीजिए v का dv by dt और डेरिवेटिव कीजिए d by dt इंटू आर ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज dv by dt. अब स्टूडेंट आर आपका इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज हो रही है रेडियस वेक्टर की, लेकिन स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड है रेडियस का वो गया है सेम, वो गया है सेम. दिस इज आर, दिस इज ए आर डैश, बट इनके मैग्नीट्यूड है, दिस इज ए रेडियस वेक्टर, दिस इज ए रेडियस वेक्टर, बट जो उनके मैग्नीट्यूड हैं स्टूडेंट वो क्या हैं, वो सेम है, वो सेम है. वेलोसिटी के भी जो यूनिफॉर्म, अगर आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो वेलोसिटी का भी जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो भी क्या होगा, सेम होगा. सिर्फ क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन. अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गई है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसीलिए आर आपका क्या डिफरेंट डेरिवेटिव से बाहर निकाल लो, ये आपका आर बार आ गया. बाकी क्या आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. और स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये आप पढ़ चुके हो, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्योंकि जो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है स्टूडेंट वो कहाँ चेंज हो रही है, अलोंग द एक्सिस. So along the tangent. So along the tangent अब क्या प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, आपकी एक एक्सेलरेशन. क्या नाम है उसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो क्या रिजल्ट आ गया, एट इज इक्वल टू आर अल्फा. ठीक है स्टूडेंट. सो नोट दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. ठीक है स्टूडेंट. सो जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की. ठीक है स्टूडेंट. और जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की. मींस अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. फॉर एग्जांपल ये बॉडी आपकी रोटेट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, ये आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. और ये क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. और यही डायरेक्शन किसकी होगी स्टूडेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन की. ठीक है स्टूडेंट. और ये डायरेक्शन किसकी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की. ठीक है स्टूडेंट. सो ये आपका आर्टिकल ओवर हो गया है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा. नाउ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन. सो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, द टाइम पीरियड कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करती है. द टाइम पीरियड टी इज द टाइम टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रोटेशन. स्टूडेंट एक कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट करने में किसी पार्टिकल को जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. और जिसको हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल इन वन पीरियड इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर. अब स्टूडेंट अगर किसी सर्कल का रेडियस आर है तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर. जो एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने वो कितना किया है, 2 पाई आर. सो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम. अब टाइम पीरियड टी, अगर आपका ये टाइम पीरियड है तो स्टूडेंट डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर. डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर. सो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई आर ओवर टी. दिस इज द लीनियर वेलोसिटी. दिस इज द लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर ओवर टी. ठीक है स्टूडेंट. अगर आपका टाइम पीरियड है, मीन डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसने, 1 कंप्लीट रोटेशन. 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है 2 पाई आर. एंड दिस इज द स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आ गया आपका, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन. एंगल एंड ऑब्जेक्ट, द एंगल एंड ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल मूव्स थ्रू इन वन पीरियड इज 2 पाई रेडियन. स्टूडेंट हमें पता है एक कंप्लीट सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करेगा तो स्टूडेंट कितना एंगल होगा, 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. सो एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. सो दिस इज द 2 पाई रेडियन. ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट रोटेशन. सो हम ये पढ़ चुके हैं. एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. अब सुन अगर डेल्टा थीटा आपका 2 पाई है, डेल्टा थीटा आपका 2 पाई है मीन्स कंप्लीट रोटेशन. तो डेल्टा टी कितना होगा, टाइम पीरियड टी, बिकॉज टाइम पीरियड टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन
रोटेशन बाय एन ऑब्जेक्ट. सो ओमेगा क्या आ गया 2 पाई ओवर टी. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड 2 पाई ओवर टी. सो इफ द एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 2 पाई रेडियन, इट मीन्स टाइम टेकन बाय कंप्लीट रोटेशन इज टाइम पीरियड टी. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन एंड फ्रीक्वेंसी. अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी इसको हमने एफ के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो फ्रीक्वेंसी एफ इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड. क्या होता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड बाय एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन. सो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम टेकन. एंड पीरियड क्या आ गया स्टूडेंट? टाइम टेकन इन नंबर ऑफ रोटेशंस. ठीक है स्टूडेंट. सो फ्रीक्वेंसी और पीरियड ये दोनों क्या हैं? उल्टे हैं. ये दोनों क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है. फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 1 ओवर टी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम टेकन. ठीक है स्टूडेंट. और पीरियड क्या आ गया? टाइम टेकन इन नंबर ऑफ रोटेशंस. टी क्या आ गया? 1 ओवर एफ. सो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 1 ओवर एफ. फिर से करके देख लो आप. स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट. सो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रोटेशंस, फॉर एग्जांपल क्या आ गई? एफ. तो इन टी सेकेंड्स में नंबर ऑफ रोटेशंस क्या आ गई? एफ इंटू टी. क्या आ गया? नंबर ऑफ रोटेशंस. ठीक है स्टूडेंट. सो क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? और नंबर ऑफ रोटेशंस टाइम पीरियड में कितनी होती हैं? 1 रोटेशन. अब ये 1 आ गया. एफ टी इज इक्वल टू 1 आ गया. अगर एफ टी इज इक्वल टू 1 आ जाए मीन्स एफ क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड क्या आ गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है स्टूडेंट. सो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है? एफ. टी सेकेंड में नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है? एफ इंटू टी. और टी सेकेंड मीन्स टाइम पीरियड में नंबर ऑफ रोटेशन होती कितनी है? इज इक्वल टू 1. सो क्या आ गया? t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ. ठीक है स्टूडेंट. सो t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ और f इज इक्वल टू 1 ओवर टी. अब स्टूडेंट ओमेगा इज इक्वल टू, हम ये प्रूव कर चुके हैं, 2 पाई ओवर टी और 1 ओवर टी की वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा क्या आ गया? 2 पाई एफ और 2 पाई न्यू. ठीक है स्टूडेंट. अगर एफ के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी को तो एफ के साथ कर लो, न्यू के साथ करना है तो न्यू के साथ कर लो. सो क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. सो नेक्स्ट आ गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है सुन, किसी ऑब्जेक्ट की. सो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है. ठीक है स्टूडेंट. तो क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई ओवर टी. अब टाइम पीरियड देखना है अर्थ पे कितना स्टूडेंट? टी कितना होता है? 24 आवर्स. ठीक है स्टूडेंट. 24 आवर्स को किस में कन्वर्ट किया? मिनट्स में मल्टीप्लाई बाय 60, फिर सेकंड्स में मल्टीप्लाई बाय 60. सो 24 आवर्स का मतलब क्या है? 86400 सेकेंड्स. अब स्टूडेंट टी की वैल्यू पुट कर दो. तो टी की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. टी की वैल्यू पुट की 86400 सेकेंड्स. तो हमारे पास क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई? 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड. यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेडियन पर सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओवर हो गया. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है? 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन, यूज द आंसर टू क्वेश्चन 1. अब हमने स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का आंसर यूज करके क्या निकालना है? कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. पहले क्या निकाली थी? एंगुलर वेलोसिटी. अब क्या निकालनी है? लीनियर वेलोसिटी. और में रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है कितना? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. सो सबसे पहले क्या लिखना? हमने रिलेशन लिखना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का. सो क्या आपका फार्मूला? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक है स्टूडेंट. ओमेगा हम निकाल चुके हैं 7.3 इंटू 10⁻5 और r की वैल्यू में गिवन है 6.4 इंटू 10⁻6. ठीक है स्टूडेंट. वो पुट कर दो. r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 और ओमेगा हम निकाल चुके हैं 7.3 इंटू 10⁻5 रेडियन पर सेकेंड. आंसर क्या आ गया? 470 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द लीनियर वेलोसिटी. ठीक है स्टूडेंट. सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फॉर द रोटेशन ऑफ द अर्थ? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फॉर द रोटेशन ऑफ द अर्थ?
कि जो अर्थ रोटेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखो स्टूडेंट, रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्या, हम अभी प्रूव कर चुके हैं 1/t। अब टाइम इन सेकेंड्स कितना, 24 आवर्स, 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, कितना आ गया 86400 सेकेंड्स। अब वहाँ पुट कर दो एफ इज इक्वल टू 1/t, तो हमारे पास क्या आ गया फ्रीक्वेंसी 1/86400 का आंसर आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट, आपका थर्ड क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। सो फोर्थ क्वेश्चन, ए बिग व्हील एट ए फेयर ग्राउंड हैज ए रेडियस 23 मीटर एंड टेक्स 5 मिनट्स टू टर्न वंस। सो स्टूडेंट एक टर्न को पूरा करने में, एक टर्न मीन्स टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। इट मीन्स जो 5 मिनट्स है स्टूडेंट वो क्या है टाइम पीरियड, वो क्या है टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट, व्हील का टाइम पीरियड कह रहा है बिग व्हील एट ए फेयर ग्राउंड हैज ए रेडियस कितना व्हील का 23 मीटर एंड टेक्स, ध्यान से पढ़िए, टेक्स 5 मिनट्स टू टर्न वंस। टू टर्न वंस मीन्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। सो टाइम टेकर टू कंप्लीट वन रोटेशन क्या होता है टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड क्या दे रखा है 5 मिनट्स। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए रोटेशन डज इट डू इन ए 1 सेकेंड। एक सेकंड में व्हील आपका कितने फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन टर्न करेगा। अगर 5 मिनट्स में एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो एक सेकंड में वो कितना फ्रैक्शन रोटेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ लग गई है। सो सबसे पहले क्या देखो, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड इज द सेम एज नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, कि एक सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है। ठीक है, मतलब हमने क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 1/t और टी स्टूडेंट हमें दे रखा है, टी कितना 5 मिनट्स, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, कितना आ गया 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। अब पुट कर दो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू क्या 1/t, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। सो एक सेकंड में कितना टर्न किया 3.3 इंटू 10⁻³ ठीक है स्टूडेंट, इतना फ्रैक्शन उसने रोटेट किया है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 3.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट, सो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ए बिग व्हील एट ए फेयर ग्राउंड हैज रेडियस ऑफ 23 मीटर, सेम क्वेश्चन एंड टेक्स 5 मिनट्स टू टर्न वंस। व्हाट स्पीड डज ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द व्हील हैव। कह रहा है एज, एज मीन्स क्या निकालने लीनियर वेलोसिटी। एज पे कौन सी वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, तो क्या निकालने को बोल रहा है v। सो v इज इक्वल टू 2πr/t, हम अभी ये निकाल चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ v इज इक्वल टू 2πr/t इन वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स 2πr डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड कितना होता है फुल कंप्लीट रोटेशन में t। तो वेलोसिटी क्या आएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस 2πr ओवर टाइम पीरियड t। अब t 5 मिनट्स है स्टूडेंट, टाइम पीरियड एक टर्न में कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए, 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। 2πr की वैल्यू 23 मीटर हमें गिवन है पुट की, और टाइम पीरियड 300 सेकेंड पुट की, आंसर क्या आ गया 0.48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट 5 क्वेश्चंस ओवर हो गए। नेक्स्ट आ गई आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, सो एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल हैज चेंजिंग वेलोसिटी। स्टूडेंट पहले हमने क्या पढ़ा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या पढ़ी थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसके कारण से चेंज इन वेलोसिटी के कारण से। वो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। स्टूडेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी होगी, इसमें होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी होगी। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है चेंज इन वेलोसिटी के कारण, वो डायरेक्शन भी हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है स्टूडेंट वो सिर्फ किस में होगी यूनिफॉर्म मोशन में, जब उसकी स्पीड क्या होगी कांस्टेंट स्पीड होगी। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड जरूरी नहीं कांस्टेंट हो चाहे ना हो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। So any object moving in a circle has a changing velocity even if it is moving at a constant speed। कह रहा है चाहे आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही है उसके बावजूद उसकी वेलोसिटी क्या होगी चेंज, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो इट इज ऑलवेज मूविंग अलोंग ए टेंजेंट टू द सर्कल, ये हम पढ़ चुके हैं। वो जो एक्सेलरेशन होगी क्या होगी अलोंग ए टेंजेंट टू द सर्कल। ये आप फॉर एग्जांपल आपका ध्यान से देखिए, आपकी वी चेंज हो रही है स्टूडेंट, वो देखिए अलोंग द टेंजेंट, जैसे जैसे व्हील मूव कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। इट मींस अलोंग द टेंजेंट क्या प्रोड्यूस होगी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है ये देखिए ध्यान से, वेलोसिटी क्या हो रही है टाइम के साथ चेंज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है ये देखिए फिर से,
आपकी v यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई। इट मीन्स टाइम के हिसाब से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज कर रही है। उसी चेंज इन वेलोसिटी के कारण क्या प्रोड्यूस हो गई, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v ओवर डेल्टा t। Therefore any moving object in a circle is accelerating। अब स्टूडेंट हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होगी, एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को क्या बोल दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन और इसका मेन कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।